હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સહૃદય હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દીમાં 8મું ચેપ્ટર દોહા અષ્ટક જેના આપણે અભ્યાસનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ખાસ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમને અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળી શકે। વિડીયો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરો। તો 8મું ચેપ્ટર દોહા અષ્ટક જેનું અભ્યાસ સોલ્યુશન આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ। તો એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहलू, बड़े लोगों की संकुचित मन स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो कहे छे कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। बीजू, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो साधु पुरुष सुप के स्वभाव वाला होना चाहिए क्योंकि सुप क्षार युक्त वस्तु अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु कचरा को बाहर फेंक देता है। त्रीजू, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथू, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે પણ અહીંયા યુટ્યુબના માધ્યમ દ્વારા તમને આ પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, અભ્યાસ આપીએ છીએ કે જેથી કરીને કોઈ જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ હોય, બરાબર, કે જે પોતે ટ્યુશન કે એવું ન રખવી શકે એમ હોય તો એ અહીંથી ભણી શકે છે। તો આ સિવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાં ઘણા બધા મિત્રોનું કહેવું હતું કે સર આ પરીક્ષા આવી ગઈ છે તો એના પ્લીઝ પેપર સેટ તમે જે અમને આપો છો દર વર્ષે કે જે આઈએમપી હોય છે એમાંથી પૂછાય છે તો પ્લીઝ આપો ને। તો મિત્રો બધું ક્યાંથી મળશે તમને કહી દઉં। જો સ્વાધ્યાય અભ્યાસની સમજૂતીના વિડીયો પીડીએફ મળશે, તમને વિષય પ્રમાણેનું મટીરિયલ મળશે, પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ પ્લસ પીડીએફ મળશે, પરીક્ષાના પેપરની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ, એકમ કસોટીની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ અને સ્વ અધ્યયન પોથીની સમજૂતીના વિડીયો પ્લસ પીડીએફ, એટલે ખાસ પરીક્ષાના પેપરના સમજૂતીના અસાઇનમેન્ટના પીડીએફ મળી જશે। જે ગૂગલ પ્લે સ્ટોર કે જ્યાંથી તમે ગેમ ડાઉનલોડ કરો છો તો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી નાખો, ઓપન કરો એટલે તમારો આ પેજ ખુલે, એમાં તમારો પોતાનો મોબાઈલ નંબર નાખો, સેન્ડ ઓટીપી કરો, 4 આંકડાનો ઓટીપી નાખશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પેજ ખુલે, એમાં પેડ કોર્સમાં તમને પેપરના ધોરણ 7માં પ્લાન મળી જશે, એક્ઝામ પેપરના પેપરો મળી જશે, 3 થી 12માં 3 થી 12 ધોરણના વિડીયો મળી જશે। એમાં તમારું 7મું ધોરણ સિલેક્શન કરીને તમારે નેક્સ્ટ બીજા સેમેસ્ટરની તૈયારી કરવી હોય તો એના વિડીયો પણ પ્રાપ્ત થશે। તો વિષય વાઇઝ પાઠ વાઇઝ તમે વિડીયો જોઈ શકશો। તો શાળા મિત્રમાં ધોરણમાં તમારું ધોરણ સિલેક્શન કરી પાઠ્યપુસ્તકમાં વિષય પ્રમાણે તમે પાઠ વાઇઝ વેદ ડિજિટલના વિડીયો પ્રાપ્ત કરી શકશો અને તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરી શકશો। 5મું, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। बीजू, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। आदर, स्वकाज, बुरा, परकाज, प्रेम, नजदीक, नफरत, मृत, इच्छा, अनादर, जीवित, छोटा, दूर, बड़ा, असत्य, सत्य। तो उदाहरण, जो सत्य, गांधी जी सत्य बोलते थे। असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। विरोधी शब्द लीधो, आदर तो अनादर, आदर हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, अनादर हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। स्वकाज, परकाज, मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था। परकाज, सज्जन लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते हैं। बुरा, अच्छा, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। प्रेम, नफरत, हम सबसे प्रेम करें। नफरत, संत पुरुष किसी से नफरत नहीं करते। नजदीक तो दूर, बाजार में घर के नजदीक है, बाजार मेरे घर के नजदीक है, पाठशाला मेरे घर से दूर है। मृत, जीवित, उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए। जीवित,
मलबे में से कोई लोग जीवित निकले। छोटा बड़ा हमारा घर छोटा है, बड़ा वह बड़ा आदमी है। त्रीजू अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो जवाब है, हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे। उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों को लिए चारे की व्यवस्था करेंगे। चौथु, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाय, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। हसु के छे, कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। बीजू, तुलसी हाय गरीबी की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लो भस्म हो जाए। એટલે કે तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी ढोंकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। वह तो सताने वाला का सर्वनाशी कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। त्रीजू, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सोई कहां करे तलवारी। એટલે કે लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई काम आती है। बराबर, तो आ रीते आपने कई कहवा मांगे छे। आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते, इसलिए समाज में छोटों का भी महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों सरस मजाનું અભ્યાસ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોયું। તો તમારા મિત્રો દોસ્તોને ચોક્કસથી જાણ કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। બરોબર, અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।